all of you. So as you already know that we have already completed all the chapters of your business studies. That means we have completed our syllabus, but now we are going to start all the chapters again so that you can understand all the content too much effectively as well as efficiently. So we are going to start with the chapter 1, that is nature and purpose of the business. Okay, so in this chapter we are going to study the characteristics and the concept of the business, what is the meaning of the business, and the what are the different characteristics of the business. Next one is compare the distinctive feature of the business, profession, and the employment. Okay, as we already discussed in the previous classes in the first chapter, that is what are the basic difference between the business, profession, and the employment. And the third topic, we will classify the business activity. Okay, we will classify the business activity and clarifying the meaning of industry and commerce. Okay, so business activities are of two types, that is industry and commerce. So we will also understand what is the meaning of the industry as well as commerce. Next topic, the various types of industry, what are the other types of industry, we will also discuss. Explain the activities relating to the commerce. Okay, so what are the different activities which is related to commerce, we will also study. Next one is analyze the objective of business. So what are the different objectives of the business, so we will also study all these things. And describe the nature of the business risk and other causes. So what are the business risks, what are the nature, as well as what are the different causes of the business risk. Next we will study the basic factors to be considered while starting a business. Okay, so what are the basic factors when we are going to start a new business, so what are the different factors which should be concerned. So these all are these topic will discuss in your business studies chapter 1, that is nature and purpose of the business. Okay, so you can also see here, as you know that we have already discussed, and mildly you are getting the meaning of the all the things, but we can easily make it more clear as well as more simple so that you can understand more effectively. Okay, so let's start first, that is introduction. Okay, so conversation. Okay, first of all we will go through this conversation. Okay, so Imran, Manpreet, Joseph and Priyanka has been classmate in class 10th. Okay, जो इमरान है, मनप्रीत है, जोसेफ एंड प्रियंका है, ये क्लासमेट्स हैं इन क्लास 10th में. आफ्टर देयर एग्ज़ाम आर ओवर, इनके एग्ज़ाम्स जब ओवर हुए, दे हैपन टू मीट एट अ कॉमन फ्रेंड रुचिका's हाउस. ठीक है, फिर उन्होंने जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उन्होंने प्लान किया कि वो जो उनकी कॉमन फ्रेंड थी रुचिका, उसके घर जाने का. जस्ट व्हेन दे शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द एग्जामिनेशन डेज, रुचिका फादर मिस्टर रघुराज चौधरी इंटरवेंस. ठीक है, जब हम लोग अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें ही कर रहे थे, तब पर रुचिका के फादर ने क्या किया, उन्होंने इंटरवेन किया, मतलब उनसे कुछ क्वेश्चंस आस्क किए व्हाट अबाउट देयर वेल बीइंग, कि उनका वेल बीइंग कैसा है, कि कैसे वो लोग अपने जो भी डिफरेंट नीड्स को कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज. एंड ही ऑल्सो इंक्वायर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ देम अबाउट देयर करियर प्लान्स. ठीक है, और उन्होंने हर एक से क्या है, उन लोग का करियर प्लान्स भी पूछा. बट नन ऑफ देम हैव डेफिनेट रिप्लाई, किसी का भी कोई भी एक डेफिनेट रिप्लाई नहीं था, कि कोई भी श्योर एंड सर्टेन नहीं था कि उन्हें क्या करना है. So Mr. Raguraj, who himself is a businessman, suggests to them they can opt for the business as a promising and challenging career. ठीक है, रघुराज जो रुचिकास के फादर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एज अ बिजनेसमैन, वो भी क्या है, बिजनेसमैन है,
उन्होंने उन सारे जो चिल्ड्रन थे उनको एक ये ऑप्शन दिया कि यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दी बिजनेस, की बिजनेस की तो और भी आप जा सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एज वेल एज चैलेंजिंग कैरियर, बहुत ही चैलेंजिंग कैरियर है। जोसेफ गेट्स एक्साइटेड बाय द आइडिया, जोसेफ जब ये न्यूज़, जब इसको पता चला बिजनेस के बारे में, सो ही बिकम्स टू मच एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गया बाय दिस आइडिया एंड सेज येस बिजनेस इज़ रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, इवन मोर देन इज़ पॉसिबल बाय बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर। तो उसने क्या बोला कि बिज़नेस क्या है, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बिजनेस के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, इवन मोर देन इट इज़ पॉसिबल बाय बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर। मतलब एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज़्यादा क्या है कि वो लोग मनी क्या है बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। मिस्टर रघुराज ओपिनियंस दिए, मतलब रघुराज ने ओपिनियन दिया, लेट मी टेल यू यंग मैन, देयर इज़ लॉट मोर टू बिजनेस दैट मेयरली मनी। उन्होंने बोला कि जो बिजनेस है उसमें बस इस मनी से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ओके, ही देन गेट्स बिजी विद सम अदर गेस्ट। फिर वो जो थे मिस्टर रघुराज, उन्होंने वो क्या थे, वो अदर गेस्ट के साथ बिजी हो गए। हाउएवर द 4 क्लासमेट्स बिगिन रेजिंग मैनी क्वेश्चन। जो 4 क्लासमेट्स से थे, ये इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका, वो क्या होते, वो लोग के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रेज होने लगे कि क्या हो, व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज़ ऑल अबाउट, कि एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, व्हाट एल्स इज़ देयर इन बिजनेस बिसाइड मनी, कि मनी के अलावा भी इस बिज़नेस में क्या हो सकता है, हाउ इज़ बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम दी नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कैसे ये जो बिज़नेस है वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से डिफरेंट हो सकता है, एंड व्हाट डज वन रिक्वायर टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि किसी एक सिंगल पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को क्या ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सके, एंड सो ऑन। सो ऐसे उनके क्या थे क्वेश्चंस उनके माइंड में रेज होने लगे। दे आर डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस कि बिज़नेस है क्या, कि बिसाइड द मनी बिज़नेस में और क्या हो सकता है, कैसे बिज़नेस अदर एक्टिविटीज़ से अलग है, कैसे हम उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में क्या होने लगे, रेज होने लगे। ओके, सो द कॉन्वर्सेशन among the 4 classmates is obviously focused on the meaning, nature, purpose of business। ठीक है, जो कॉन्वर्सेशन ये 4 क्लासमेट्स में हो रहा था, ये क्या था, ये पूरा फोकस किस पे किया था कि बिज़नेस की मीनिंग क्या है, उसका नेचर कैसा है, एज वेल एज उसका पर्पस क्या है बिजनेस करने का। सो ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग है, एज अ ह्यूमन बींग हम क्या चाहते हैं, वेयर दे में भी, वो जहाँ भी हों, दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन्हें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, सो टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, एज अ कंज्यूमर हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो नीड्स है, मैक्सिमम नीड्स हमारी क्या हो, सेटिस्फाइड हो। सो द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, जो नेसेसिटी ऑफ द सप्लाइंग की, जो गुड्स और जो सर्विसेज, जो नेसेसिटी है जो उनकी सप्लाई होगी, हैज़ लेड अ सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसे सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं बाय द पर्सन के थ्रू टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज़ नीडेड बाय अदर, की जो भी प्रोड्यूस करना है और जो भी सेल करना है, उन सारे से रिलेटेड क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या है करना पड़ता है, व्हाट इज़ नीडेड बाय अदर, जो भी उन गुड्स को क्या कर रहे हैं, नीड कर रहे हैं। सो बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़ concerned at it is with the production and the sale of goods and services required by people। okay, business क्या है, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन मॉडर्न सोसाइटी के मॉडर्न जो सोसाइटी है उनमें क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न एज इट इज़ विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि
हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, पहले हम प्रोड्यूस करेंगे एंड आफ्टर डैट द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल। फिर पहले हम प्रोड्यूस कर लेंगे, जो भी प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और एज अ कंज्यूमर हम क्या करते हैं, कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम। सो जो ये बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है in which there is production as well as sale of goods and services which is required by the people को अगर उसकी requirement है तो क्या होता है, goods का production होता है as well as sale होता है। So the purpose behind most business activity is to earn money by meeting people's demand for goods and services। ठीक है, जो पर्पस है बिहाइंड द बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का करने के पीछे जो पर्पस है क्या है, टू अर्न मनी, कि मनी को अर्न करना बाय मीटिंग द पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कैसे हम लोग मनी अर्न करेंगे, कि जो भी पीपल डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर देना ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स की डिमांड है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी डिमांड है उनको क्या कर देना, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देना, सो दैट वी कैन मेक मोर एंड मोर मनी। बिजनेस इज़ अ सेंट्रल टू आवर लिव्स। ठीक है, जो बिजनेस है वो क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है कि आवर लाइफ से, ऑल्दो आवर लाइफ्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बट हमारी जो लाइफ है वो और अदर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से, कोई भी इंस्टीट्यूशन से क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है, अफेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस होती है इन मॉडर्न सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में लाइक स्कूल क्या एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं, कॉलेजेस जहाँ पे हम एजुकेशन आफ्टर 12th लेते हैं, हॉस्पिटल्स होता है जहाँ हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती हैं, रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं डिफरेंट, उन बिजनेस हैज़ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। ठीक है, बिजनेस का क्या है, एक मेजर इन्फ्लुएंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ऑन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इट देयरफॉर बिकम इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो बिकम ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है कि हम क्या है, बिजनेस को, कंसेप्ट को समझे, उसका नेचर क्या है एज वेल एज उसका पर्पस क्या है, वाई वी आर गोइंग थ्रू दी बिजनेस। ओके, सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कि ये पढ़ा कि ऑल जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़, ऑल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको क्या है, कुछ न कुछ वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ दी देयर वांट्स। सो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक मेजर एक्टिविटी है एक मॉडर्न सोसाइटी का, जो किससे कंसर्न करता है, कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज which is required by the people. So the main purpose of the behind the business is to earn money by meeting the people's demand for goods and services. जो भी people demand कर रहे हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करके क्या है कि मनी को मेक करना। सो बिजनेस क्या है, एक सेंट्रल लाइफ है, मतलब सेंट्रल लिव्स है जिसपे लोग डिपेंड करते हैं, एज वेल एज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेजेस, ओके, एंड अदर इज पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बॉडीज। सो बिजनेस हैज़ ऑल्सो द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल in our daily life. So it is very important to know what is the business, what is the concept of business, what is the nature of the business, and what is the different purpose of the business. Okay, so concept of business. So the term business is derived from the word busy. ठीक है, जो business term है वो कहाँ से आया है, busy से आया है। सर okay, so thus business mean being busy. ओके, बिजनेस का क्या मतलब होता है कि बीइंग बिजी रहना। ओके, हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस refers to any occupation in which people regularly engage in an activity
विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का क्या है, एक ऑक्यूपेशन होता है, एक टाइप का ऑक्यूपेशन है, वर्क है, जो क्या है, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, जिसमें पीपल क्या होते हैं, वो रेगुलरली क्या होते हैं, इंगेज होते हैं इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में, विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। किसके मेन उनका मोटिव क्या होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट। ठीक है, उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। सो द एक्टिविटी मे कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और टू सप्लाई सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। ओके, सो इस एक्टिविटी में क्या क्या होता है कि सबसे पहले गुड्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। परचेज ऑफ द गुड्स फॉर द सेल, फिर क्या है, गुड्स को वो परचेज भी करते हैं फॉर द सेल, कि हम कोई भी रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। उन रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद हम कोई कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स को क्या करना, एक्सचेंज करना फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू दी डिफरेंट कंज्यूमर के साथ क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को भी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, कि जो भी नीड है, जो भी पीपल की नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, सो इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड। ठीक है, हर एक सोसाइटी में क्या है, जो पीपल होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, हमें पता है कि अगर आप क्या हो, अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, आप भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कि आप पढ़ाई की एक्टिविटी कर रहे हो, तो कोई भी सोसाइटी में जितने भी डिफरेंट पीपल हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आपका क्या है, एक एजुकेशन आप ले रहे हो, तो आपका भी तो कोई मोटिव लेके चल रहे हो ना, कि आप प्रॉपर एजुकेशन ले लोगे, फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, आपको यहाँ जॉब करना है, या इस एरिया में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है, या इस जॉब में जाना है। तो ये सब क्या है कि एक हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक सर्टेनिटी लेके चल रहे हैं कि हमें इसको क्या करना है, फुलफ़िल करना है। सो इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, पीपल क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो दीज एक्टिविटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटी हैं, इनको क्या करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं। ओके, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हम कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, so activities is divided into, ओके, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसी तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे होंगे, हम लोग कोई भी एक्टिविटी करने का मतलब है कि हम लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। ओके, so two activities is done by us, any human being, that is activities, economic activity and the non-economic activity. Economic activities are those by which we can earn our livelihood, whereas non-economic activities are those from which we are not earning anything. Okay, we are doing for the self satisfaction. Okay, कि हम लोग क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिसमें है क्या है, हम लोग अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, मतलब वी कैन फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी वी कैन अर्न समथिंग, हम कुछ अर्न कर रहे हैं। बट नॉन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कुछ भी अर्न नहीं करते। एज यू सी हियर दैट ऑल दी वेट अ मिनट, all human beings wherever they are required to perform some or other activity to satisfy their needs. ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है to satisfy their needs. They pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Okay, कोई भी different occupation करते हैं अपनी livelihood को earn करने के लिए। मतलब अगर कोई भी एज अ इंडिविजुअल आपके पेरेंट कोई काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड को ईजिली रन कर सके, कुछ अर्न कर सके, सो दैट
they can increase their standard of living, as well as they can fulfill their all the wants to get some psychological satisfaction. कि हम लोग क्या है, कोई भी साइकोलॉजिकल मतलब मीन्स मेंटली हम क्या है कुछ सेटिस्फेक्शन को अर्न करें. एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, जो भी एक्टिविटी ह्यूमन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्न मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं, बट अदर्स आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन. और कुछ क्या हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी की जाती है, पर्सनल के सेटिस्फेक्शन के लिए भी की जाती है, मतलब खुद का मेरा कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा उसके लिए भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. सो ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ दीज एक्टिविटी प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है. इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स हमारी कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, मतलब हमारी कुछ अर्निंग हो रही है. ओके, सो वर्किंग इन ऑफिस, कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कर नहीं रहा होगा, उसको कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रहा होगा. रनिंग अ शॉप, कोई भी शॉप ओपन किया है, अगर वो कुछ शॉप ओपन करा होगा उसकी वहाँ पे कुछ अर्निंग हो रही होगी. प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह वो प्रैक्टिस ले रहा है, कर रहा है, तो ये क्या है, उसको भी कुछ ना कुछ एक स्टाइपेंड और कुछ अर्निंग हो रही होगी. वाइल अदर्स डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती, मीन्स हमारी कोई इकोनॉमिकली अर्निंग नहीं होती है, उससे कोई भी अर्निंग नहीं होती. लाइक कुकिंग, हम कुछ खाना बना रहे हो घर वालों के लिए, प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, मतलब खेल रहे होंगे तो क्या हमको कोई अर्निंग होती, कोई पैसा तो देता नहीं है. गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, वो क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या है, कोई भी एज अ स्कूल, मतलब स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने तो ये क्या है, वहाँ पे उसको पैसा तो मिल नहीं रहा है. और वही टीचर जा रहा है स्कूल पढ़ाने तो वहाँ पे क्या है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, मतलब टीचर को क्या है, सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो गया, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया. गोइंग टू टेम्पल, अब आप दर्शन करने जाते हो तो क्या भगवान आपको पैसे तो देते नहीं है कि लो ये इतना 500 रुपये 1000 लेके जाओ. ये सब क्या है कि ये सब पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लेके जा रहे हैं, मतलब कोई भी इंडिविजुअल डूइंग फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि हमें वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. दैट्स वाई वी आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटी. हम लोग इसीलिए क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. व्हाट आर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, so let's start. What is the economic activity? So activities which are undertaken by the people with the object of earning money are known as economic activity. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, by the people, the activities which is done by the people with the object of earning money, कि हम लोग कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, कि मनी को अर्न करने के लिए कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये सारी एक्टिविटीज़ किससे कंसर्न होती हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब गुड्स प्रोड्यूस करके उसको हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब लोगों को जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, so the purpose of the economic activity should be expectation of money income which is used for the further creation of wealth or assets. Okay, so जो पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि मनी इनकम हमारी जनरेट होगी, हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमको मनी मिलेगा, एंड विच इज़ यूज फॉर द फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और असेट. और उसके थ्रू हम क्या है, कुछ और वेल्थ और
डिफरेंट असेट का क्या करेंगे, एक क्रिएशन करेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ इनकम होगी, आप कुछ अर्न करोगे, तो उस अर्निंग से आप कुछ क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे और कुछ और नया असेट क्या है बनाते चले जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, कोई भी गुड्स देखिए, ऐसे गुड्स क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन उनका हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय द होल सेलर और रिटेलर। ठीक है, अब गुड्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं होल सेलर और रिटेलर के थ्रू। ओके, ये बिजनेस चेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स इज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर ये किसको देता है, ये गुड्स को होलसेलर को दे दिया। ओके, अब होलसेलर ये गुड्स किसको देता है, रिटेलर को। रिटेलर जो जिसके यहाँ से हम लोग शॉप पे जाते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट दिस वन इज अल्टीमेटली द गुड्स इज रीच टू द कंज्यूमर। गुड्स क्या है, कंज्यूमर को रीच आउट हो जाता है, कंज्यूमर। ओके, तो ये इसी को क्या बोलती है, बिजनेस चेन है। एक चेन है जिसमें गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से बल्क अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज कर लेता है, फिर रिटेलर क्या करता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक साथ बल्क अमाउंट में होलसेलर से नहीं परचेज करता है, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है फ्रॉम दी होलसेलर, और अब कंज्यूमर क्या है, रिटेलर से जाके गुड्स को परचेज करता है। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, देखिए डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहा है। लॉयर, जो लॉयर्स होते हैं, वकील। वर्किंग एज अ टीचर, कोई भी आपके स्कूल में टीचर है, स्कूल में काम कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन रिटर्न उनका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली उनको कुछ अर्निंग हो रही है। ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं। ओके, सो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। बिजनेस एक्टिविटी क्या है, 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं फॉर द अर्निंग मनी, वो क्या है, उसका 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला उसका क्या है, बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो business refers to those economic activity which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of the earning profit। ठीक है, बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस refers to those economic activity, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी which are connected with the production, जो किससे कनेक्ट होता है, गुड्स के प्रोडक्शन से, उनका परचेज करने से, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को सेल करना एज वेल एज उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बिजनेस में क्या हो गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई, जो किससे मतलब है कि गुड्स का कुछ हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स को परचेज़ करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट हम कुछ कर रहे हैं उसकी फैसिलिटी हो गई, इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी हो, ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं विद द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। द एग्जाम्पल्स आर दी फिशिंग, mining, farming, manufacturing, wholesales, etc. Okay, as I already told that the business chain is like that, producer, and then
wholesaler and then retailer and then consumer. ओके, ऐसे ही क्या होता है, गुड्स हमारा मार्केट में क्या है वो सर्कुलेट होता रहता है. ठीक है, अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये सब किस में आएगा, बिजनेस में आएगा. कुछ परचेज हो रहा है, कुछ हम सेल कर रहे हैं, कुछ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. अब क्या है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंज्यूमर को. तो ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं. यही सारा क्या होता है, बिजनेस. ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं. ओके, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.